سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر، بحران کا خدشہ، پیٹرولیم مصنوعات کے 20 دن سے زائد کے ذخائر موجود ہیں، حکومت کا دعویٰ ڈیزل مل ہی نہیں رہا، پیٹرول پمپ مالکان کا شکوہ۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبد القادر سے، جو کہ اس وقت پیٹرولیم ڈیلرز کے ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر چودھری نعمان مجید کے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی بازگشت جو ہے وہ اب سر اٹھانے لگی ہے، اور ڈیزل کی جو سپلائی ہے وہ تقریباً 70 سے 80% تک کم ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل بھی لوگوں کو جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ 40 سے 50% تک کم ہوئی ہے۔ یہ تمام جو ہے کیا معاملہ ہے، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وافر ذخائر موجود ہیں، 20 سے 25 دنوں تک کے جو ہے وہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پیٹرول پمپ مالکان یہ کہتے ہیں کہ سپلائیاں جو ہیں وہ کم ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت سینٹرل پنجاب کے صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری نعمان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نعمان صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 20 سے 25 دن کا سٹاک ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپلائیاں نہیں مل رہی، شارٹیج کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جو ہے نا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس ٹائم، 28 سے 30 دن کا ذخیرہ اس ٹائم جو ہے وہ موجود ہے ملک میں۔ ابھی تک شارٹیج کی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جنگ لگی کو 5 دن ہوئے ہیں، ابھی جو ہے وہ ٹائم پڑا ہوا ہے، آگے سے سپلائی آ رہی ہے، شپس وہاں سے نکل پڑے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے یمبو والے روٹ سے آ رہے ہیں، لیکن جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے جو ہے ہمیں ہمارا پیٹرول پمپوں کو سپلائی دینا روک دی ہے، کیونکہ ایک تو کرایہ بڑھ رہا ہے جو روٹ چینج ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو بیرل کی قیمت ہے وہ $70 سے اس ٹائم $82 پر گئی ہے، تو $12 جو ہے اس کے اندر انکریز آیا ہے۔ تو اب جو ریٹس انکریز ہونے کی وجہ کا خدشہ ہے، جس وجہ سے آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جو خام تیل ہے اس کی مقدار جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ذخائر جو ہیں وہ مناسب سطح پر موجود ہیں، لیکن آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے جو ہے یہ پیٹرول پمپوں کو جو سپلائی دی جا رہی ہے اس میں یہ تمام جو ہے مسائل اٹھ رہے ہیں کہ جس پیٹرول پمپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 20,000 لیٹر ڈیزل کی ہے، تو اس کو سپلائی جو ہے وہ صرف 5,000 لیٹر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ 50 سے 40% تک جو ہے وہ کم سپلائی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور اگر حکومت کی جانب سے بر وقت اس پر اقدامات نہ کیے گئے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا محاسبہ نہ کیا گیا، تو یہ پینک بائنگ کی طرف بھی جو ہے سارا معاملہ جا سکتا ہے کہ شہری جو ہے پیٹرول پمپوں پر خوف و ہراس میں پہنچ جائے کہ شاید پیٹرول ملنا بند ہو رہا ہے، یا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ملے گا آنے والے دنوں میں، جس کی وجہ سے ایک نیا بحران جو ہے وہ سر اٹھائے گا۔ جی عبد القادر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایران امریکہ جنگ نے فضائی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس کے گوداموں میں سینکڑوں ٹن سامان کے انبار لگ گئے ہیں۔ بڑی ایئر کارگو سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے چارجز 2 سے 3 گنا بڑھا دیے ہیں۔ گوشت، پھل، سبزیاں وغیرہ 5 روز سے بیرون ممالک نہ بھجوائے جا سکے، ایکسپورٹر شدید پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی سے۔ جی محمد علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی لاہور سمیت ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹ سے ایئر کارگو جو وہ بہت زیادہ ہے، اور جس کے باعث ان سے پیریشیبل آئٹم جتنے میں پھل، سبزیاں، گوشت یہ خراب ہو رہی ہیں۔ جتنی لاہور سے یا دوسرے ممالک میں جاتی ہیں عرب کنٹری میں، وہ تمام تر جتنی بھی کارگو وہ ایئرپورٹس پہ کئی ٹن موجود ہے۔ اس میں لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، اسی طرح ملتان، سکھر، کراچی ایئرپورٹ، پشاور ایئرپورٹ، یہ تمام ایئرپورٹس پر کارگو کی بڑی کمپنیاں جتنی بھی انہوں نے اپنے ریٹس کئی گنا بڑھا دیے، جس کے باعث امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور بالخصوص جو ایجنٹس ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ کئی گنا چارجز بڑھنے کی وجہ سے شہری جو ان سے وہ اپنا مال بیرون ملک نہیں بھجوا رہے، جن میں زیادہ تر ایسے پھل سبزیاں ہیں جو جن کی عمر صرف کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جس میں اسٹرابری ہے، اس میں موسمی، مالٹا، سیب، کیلا، یہ تمام چیزیں بیرون ملک جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت تمام ایئرپورٹس پہ رکی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ادویات بہت شامل ہیں جو بیرون ملک سے پاکستان آنی تھی، اور پاکستان سے جو بیرون ملک جاتی ہیں وہ چیزیں تمام اس وقت کارگو شیڈوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی، آپ کا بہت شکریہ۔ مشرقی وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر، لاہور سمیت ملک بھر میں آج بھی 167 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 32 پروازیں منسوخ ہوئی۔ گزشتہ 5 روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد 775 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر ہو رہا ہے۔
कमेटी में 2 साबिक कप्तानों की शमूलियत। ज़राए के मुताबिक मिसबाउल हक और सरफराज अहमद कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन बन गए। में आकिब जावेद और असद शफीक बरकरार। अलीम डार ने 3 रोज़ कबल सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दिया था। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। कौमी सिलेक्शन कमेटी में 2 साबिक कप्तानों को शामिल कर लिया गया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी में मिसबाउल हक और सरफराज अहमद कौमी सिलेक्शन के रुकन बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी ने वेबसाइट पर सिलेक्शन कमेटी को अपडेट भी कर दिया है। अलीम डार ने 3 रोज कबल सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये मामला पेश आया और सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद और असद शफीक बरकरार हैं। इस वक्त कौमी सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़ रवां साल 28 मार्च से होगा। इफ्तिताही तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी और बड़ी शाहराहों पर 28 मार्च से 11 अप्रैल तक ग्रैंड फ्लोट परेड होगी। 1 अप्रैल को पोलो क्लब में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर हॉर्स एंड कैटल शो की मंजूरी दे दी गई है और इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब 28 मार्च को फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में होगी। ये जो फेस्टिवल है इसको भरपूर अंदाज में मनाने के लिए लाहौर की बड़ी शाहराहों पर 28 मार्च से 11 अप्रैल तक तकरीबन 13 दिन तक ग्रैंड फ्लोट जो परेड है उसका इनेकाद किया जाएगा। इस हॉर्स एंड कैटल शो को मद्देनजर रखते हुए 29 मार्च को लाहौर पोलो क्लब में विंटेज कार और बाइक शो होगा। 1 अप्रैल को लाहौर पोलो क्लब में इंटरनेशनल पोलो मैच होगा, जबकि अरब हॉर्स ड्रेसाज और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप भी 1 अप्रैल को ही होगी। 3 से 5 अप्रैल तक फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो की नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा 10 से 12 अप्रैल तक जिलानी पार्क रेस कोर्स में फूड एंड म्यूजिकल फेस्टिवल करने का फैसला किया गया है। 12 अप्रैल को हजूरी बाग में सूफी फेस्टिवल होगा। इसके अलावा इस हॉर्स एंड कैटल शो के तहत कबड्डी के जो मुकाबले हैं उनका इनेकाद भी जिलानी पार्क रेस कोर्स पे किया जाएगा, जबकि साइकिल रेस भी इस शेड्यूल का हिस्सा होगी। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब 18 अप्रैल को होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हॉर्स एंड कैटल शो में मेहमान खसूसी होंगी, जबकि इस शो में जो अस्करी क़यादत है उसको भी मदऊ किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की तरफ से तमाम जो तकारीब हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है और ये 28 मार्च से शुरू होने वाला जो फेस्टिवल है ये 11 अप्रैल तक जारी रहेगा और इख्तितामी तकरीब 18 अप्रैल को इसका इनेकाद किया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। दरबार शेख अली हजवेरी बादशाही मस्जिद समेत पंजाब भर में एहतिकाफ के लिए तैयारियां। तर्जुमान महकमा औकाफ के मुताबिक एहतिकाफ फॉर्म्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। बादशाही मस्जिद में एहतिकाफ के लिए 478 दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरबार शेख अली हजवेरी इंतजामिया ने 1550 एहतिकाफ फॉर्म जमा किए, जबकि 1450 फॉर्म वापस मौसूल हुए हैं। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। आज को देखें, दाता दरबार और बादशाही मस्जिद समेत सूबा भर में एहतिकाफ की तैयारियां जो हैं वो कुछ दिन में शुरू कर दी जाएंगी, जबकि एहतिकाफ फॉर्म्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 1550 एहतिकाफ फॉर्म जारी किए थे, जिसमें से दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन को 1450 मुतकिफ हजरात के फॉर्म वापस मौसूल हुए हैं। यानी कि इस दफ़ा दाता दरबार में तकरीबन 1450 के करीब जो है वो हजरात एहतिकाफ की सआदत हासिल करेंगे, जबकि बादशाही मस्जिद में 478 एहतिकाफ की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनका स्क्रूटनी का अमल जारी है। जबकि फॉर्म स्क्रूटनी के बाद एहतिकाफ के इंतजाम का अमल शुरू किया जाएगा, जबकि तर्जुमान औकाफ का कहना है कि मुतकफीन के लिए बिस्तर और पर्दे का इंतजाम किया जाएगा, जबकि एहतिकाफ पर बैठने वाले हजरात के लिए सैर रफ्तार का वसी इंतजाम होगा। जबकि तर्जुमान औकाफ का कहना है कि महकमा औकाफ दाता दरबार के इंतजाम देखेगा, जबकि बकिया तमाम मसाजिद की निगरानी मसाजिद कमेटियां करेंगी। जबकि तर्जुमान औकाफ का कहना है कि छोटी मसाजिद में 50 से लेकर 200 अफराद जो हैं वो एहतिकाफ की शहादत हासिल करेंगे, जबकि जो बड़ी जामियात और बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर 300 से लेकर 500 तक अफराद जो हैं वो एहतिकाफ की शहादत हासिल करेंगे। जबकि इस साल जो सबसे बड़ा एहतिकाफ है वो दाता दरबार में होगा, जिसमें तकरीबन 1450 के करीब हजरात जो हैं वो एहतिकाफ की शहादत हासिल करेंगे, जिनका वसी और अरीज इफ्तार और सहरी का इंतजाम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।
नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट बाबर आजम लाहौर रीजन की टीम में खेलेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम ने नेशनल T20 टूर्नामेंट के लिए दस्तयाबी दे दी है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम लाहौर वाइट की टीम में शामिल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जी, नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें साबिक कप्तान बाबर आजम ने नेशनल T20 टूर्नामेंट के लिए दस्तयाबी दे दी है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को लाहौर रीजन की टीम में शामिल किया जाएगा, जहां बाबर आजम लाहौर वाइट में शामिल होंगे। नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका इस वक्त वेन्यू जो है वो पेशावर में है और इस वक्त बाबर आजम ने जो है वो नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से लाहौर रीजन नुमाइंदगी करते हुए लाहौर वाइट में शामिल करने का इंतजार दे दिया गया है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, शामिल करेंगे इमारतों के खिलाफ LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। LDA टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 58 इमलाक सरबा मोहर इकबाल टाउन में और सब्जाजार में 25 इमलाक सील कर दी गई हैं। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर, फूड पॉइंट और दीगर शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जैन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन जारी है। LDA टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। 58 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया है। इकबाल टाउन और सब्जाजार में 25 इमलाक सील कर दी गई हैं। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर, फूड पॉइंट और दीगर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। LDA टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। 58 इमलाक को सरबा मोहर किया गया। इकबाल टाउन और सब्जाजार में 25 इमलाक सील कर दी गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर और फूड पॉइंट और दीगर भी शामिल हैं। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। बीवी पर जालिमाना तशद्दुद करने वाला शौहर सेफ सिटी की मदद से गिरफ्तार। मुतासरा खातून की वालिदा ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पर कॉल करके फौरी मदद तलब की। वालिदा के मुताबिक दामाद ने बेटी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से बेदखल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, बीवी पर तशद्दुद करने वाले शोहर को सेफ्टी की मदद से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून के वालदा ने जो है उसके वुमेन पुलिस स्टेशन पर कॉल करके जो है वो कंप्लेन दर्ज करवाई। वालदा के मुताबिक दामाद ने बेटी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से बेदखल कर दिया था। वालदा कहना है कि बेटी तवील अरसे से घरेलू तशद्दुद और हरसानी का जो है शिकार थी। साथ मिलते ही वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकामी पुलिस को रवाना किया। अगाड़ी पुलिस ने बरवसत मौके पर पहुंचकर मुतासरा खातून को वापस फराहम किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। विधायी मालूमात के मुताबिक मूली जो है वो घरेलू तनाज़ुर वाले मुलजिम ने बेवी को गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया और सख्त बाल काट दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो मुलजिम के खिलाफ अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में यौम ख़वातीन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज़ भट्ट की सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। हिना परवेज़ भट्ट का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था, पंजाब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ मिले। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में यौम ख़वातीन के हवाले से मुनक़्क़द सेमिनार में हिना परवेज़ भट्ट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस्तकबाल किया और शील्ड भी पेश की और हिना परवेज़ भट्ट और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के काम को भी खूब सराहा। पंजाब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ख़वातीन को इनके हकूक़ मिले। हिना परवेज़ भट्ट का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोई किसी खातून को हरासा ना कर सकता है और ना एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पैदा कर सकता है। ख़वातीन के हकूक़ पामाल करना और इन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कानून बनाया है। सामिया बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लहर मनसूबा जात से मुताल्लिक़ अहम फैसला। लाहौर के 2 बड़े ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाज़ों की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। टीपा को नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा जून 2026 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। नासिरबाद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। माली वसाइल में ताख़ीर हुई तो मनसूबों की डेडलाइन मुतासिर होने का भी खदशा है। आपको बता रहे हैं कि
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लहर मनसूबा जात से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है। लाहौर के 2 बड़े ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लहर मनसूबा जात से मुतालिक अहम फैसला। लाहौर के 2 बड़े ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजों की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। टीपा को नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा जून 2026 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल के वफ़द से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों तिबी सहूलियात की बेहतरी बारे तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल की काविशों को सराहते हैं। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल के वफ़द से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों तिबी सहूलियात की बेहतरी बारे तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल की काविशों को सराहते हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल के वफ़द से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की म्यू अस्पताल लाहौर में फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल के वफ़द से मुलाकात हुई, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट पंजाब अजमत महमूद, CEO म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर मोहम्मद शुएब नबी, प्रोफेसर इकरार अशरफ और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। जबकि इस वक्त ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल लाहौर की काविशों को सराहते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर म्यू अस्पताल की बहाली का मनसूबा शुरू किया गया है। म्यू अस्पताल पंजाब का एक तारीखी और अहम तदरीसी अस्पताल है, जहाँ रोजाना हज़ारों मरीज इलाज के लिए आते हैं और हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अभियान के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात को बेहतर बनाने और मरीजों को जदीद तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है और न्यू अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील से मरीजों को मज़ीद बेहतर सहूलियात में असर आएंगी और इलाज मुआवजे का मेयार भी बेहतर होगा। और फ्रेंड्स ऑफ न्यू अस्पताल जैसे फलाही इदारों का किरदार काबिल तहसीन है, जो अस्पताल की बेहतरी और मरीजों की सहूलत के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हुकूमत पंजाब आवाम को मेयारी और बरवक्त तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। सेक्रेटरी स्टेट पंजाब अजमत महमूद का ये कहना था कि न्यू अस्पताल लाहौर में जारी मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। यकीनी बना रहे हैं कि बहाली मनसूबा के दौरान मरीजों के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए और न्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों के बेहतर इलाज मुआवजे के लिए ताउन जारी रखेंगे। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली का पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने स्विमिंग पूल के अपग्रेडेशन वर्क का भी मुआयना किया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब की मेन स्विमिंग पूल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, इस दौरे का अहवाल बताएं। जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने स्विमिंग पूल के हवाले से दौरा किया है, जहां इस दौरे के हवाले से उन्होंने तमाम इंतजामी अमूर को पेश नज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है, जिसमें सबसे जो अहम बात है उसमें इस स्विमिंग पूल को मौजूदा दौर के तर्ज अमल के हवाले से अपग्रेड करना, जिसमें का तफसीली मुआयना भी किया। और इस मौके पर जनरल मैनेजर स्विमिंग पूल और इसके साथ साथ PDM UK अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब को स्विमिंग पूल की अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ मराहल और जारी तामीराती काम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने हदायत की है कि मेन स्विमिंग पूल के तामीराती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जबकि लेडी स्विमिंग पूल को आइंदा 2 माह के अंदर मुकम्मल करने को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली ने कहा कि पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की जदीद तकाजों के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। PDM में पंजाब का सूबा भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे बारे अलर्ट जारी। PDM में के मुताबिक आइंदा दिनों में पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब के शुमाली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM में पंजाब का सूबे भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि आइंदा दिनों में पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में मामूल से 6 से 8 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब के शुमाली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 6 से 7 मार्च के दौरान बलाई इलाकों में बारिश की पेशन गोई की गई है। 9 से 11 मार्च के दौरान भी शुमाली इलाका जात में बारिश के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं, जबकि PDM की जानिब से बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत में इजाफे से फसलें जो हैं वो मुतासर होने के इम्कान हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया।